Hello students, welcome to my YouTube channel CS&IP tutorials. In this video we are going to start a new topic, that is database management system, or generally called as DBMS. DBMS is, as the name suggests, yes, it is a system to manage database, and a database is a collection of structured information, or you can say a database is a collection of data related to some particular object. It could be some organization, person, firm, etc. Stored together. Talking about the term structured information, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं. See, data is raw facts and figures. We all know that. Let's say if I am saying 5, so 5 could be 5 centimeters or 5 kilometers, or it could be marks of some short class test, or it could be age of a child, or anything like that. But when we relate this data to some object, that becomes information. Let's say I am saying that 5 is the age of a child, तो अब ये information बन गई. Structured information क्या होती है? जब मैं information को किसी particular predefined structure में store करती हूँ, that becomes structured information. Like अगर स्टूडेंट का डेटा है, मेरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और मैं उसको टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना के उसके अंदर मैं उसको स्टोर कर रही हूँ, देन दैट टेबल इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ information. I am storing that information in the form of a table, in the structure of a table. That structure is actually predefined. So this is what structured information is. So we can say that database is a collection of structured information related to some particular organization, person, firm, or any object that is existing in the real world, right? Now in earlier days, yes, this database used to be in the form of files. Nowadays it is computerized, and when I am talking about computers, तो system to manage database मतलब software, and hence the definition, database management system is a software to facilitate the end user related to all the operations in a database. और वो operations क्या क्या हैं? Storing, retrieving and manipulating the data, and that is our definition of DBMS. अब बात आती है, ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि DBMS है क्या, लेकिन हम DBMS क्यों पढ़े? इतना सारा सिलेबस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ें जो कि हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आफ्टर 10th, और उसके बाद अब ये DBMS भी, तो ऐसा क्यों? सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर सीइंग अ शॉर्ट डायग्राम. At one end there is user interaction, user interface you can say, and at the another end there is database, and in between is the DBMS. अब मैं अगर इस यूज़र इंटरफेस की बात करूँ ना, आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू लार्ज स्केल एप्लीकेशंस या लार्ज स्केल प्रोग्रामिंग, जो भी मैं सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही हूँ. लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन. जब मैं लार्ज स्केल पे प्रोग्रामिंग करूँगी तो हाँ, ऑब्वियसली डेटा तो मैं इनपुट लूँगी यूज़र से और उसको प्रोसेस करूँगी, यूज़र को आउटपुट भी दूँगी. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एप्लीकेशन, तो मैं उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी करूँगी, एंड ऑब्वियसली दैट डेटा इज़ गोइंग टू बी ऑफ ह्यूज अमाउंट बिकॉज इट इज़ अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन. और जो इतना सारा डेटा होगा उसको मैनेज करना, उसको सिक्योर रखना, एंड मैनी कंसर्न्स. For all those I need DBMS. So you can conclude this that your programming and database management system go hand in hand when I am talking about designing large scale applications or large scale softwares, and that is why we need to study DBMS as well along with programming. Now, what the advantages that DBMS offers? तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, पहले आप ये समझ लीजिए कि इन DBMS माई डेटा इज़ केप्ट सेंट्रलाइज्ड. एक जगह पर ही डेटा होगा, एंड दैट इज़ सर्व्ड अमंग डिफरेंट क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जैसे कि अगर मैं एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो बैंक में तो बहुत सारा डेटा होता है, एंड येस द डेटा इज़ वेरी सेंसिटिव डेटा, बहुत ही उसको सिक्योर रखने की ज़रूरत है. तो सारा ही डेटा मैं ऐसे खोल के तो कहीं पे भी नहीं रख सकती ना. दैट इज़ हाईली सेंसिटिव डेटा एज फार एज सिक्योरिटी इज़ कंसर्न्ड. तो लाइक मैं एक बैंक में मेरा अकाउंट है,
किसी XYZ पर्सन जिसका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, क्या उसका अकाउंट नंबर है, क्या उसका ये ATM कार्ड का नंबर होगा, क्या पिन होगा, इन सब से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो इन डेटाज को सेपरेट रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई अब उस बैंक के तो बहुत सारे क्लाइंट हो गए ना, और हर क्लाइंट के साथ हम सारा का सारा डेटा तो नहीं शेयर करेंगे। वी नीड टू कीप दैट सिक्योरिटी ऑन द डेटा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मेरा DBMS मुझे फैसिलिटेट करता है। कैसे करता है, एक एक पॉइंट हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, इट रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। नाउ व्हाट इज़ डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ डेटा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके स्कूल में आपके सब्जेक्ट टीचर के पास भी आपके मार्क्स हैं। लेट्स सपोज कोई टेस्ट कंडक्ट हुआ है, एक यूनिट टेस्ट हुआ या पीरियोडिक टेस्ट हुआ है या हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम कंडक्ट हुआ, जो भी। तो आपके सब्जेक्ट टीचर के पास भी उस टेस्ट के मार्क्स हैं और आपके क्लास टीचर के पास भी उस टेस्ट के मार्क्स हैं। इफ़ आई एम यूजिंग DBMS, तो मैं एक ही जगह वो पूरा डेटा रखूँगी और वहीं से शेयर कर दूंगी टू द क्लास टीचर एज वेल एज टू द सब्जेक्ट टीचर, टू द पेरेंट और टू हूसोएवर वांट टू व्यू दैट डेटा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर मैं कंप्यूटराइज सिस्टम ना यूज़ करके फाइल सिस्टम पे जाती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? आई नीड टू कीप डिफरेंट कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। एक मार्क स्लिप होगी जो सब्जेक्ट टीचर के पास होगी, एक मार्क स्लिप होगी जो क्लास टीचर के पास होगी, फिर पेरेंट को हम देंगे तो रिपोर्ट कार्ड देंगे, और कहीं और अगर रिपोर्ट मांगी जाएगी तो वहाँ हम एक अलग कॉपी क्रिएट करके देंगे। सो दिस इज़ नोन एज डेटा रिडंडेंसी, एंड दैट डेटा रिडंडेंसी इज रिड्यूस्ड to a great extent in your DBMS. Then second is controlled data inconsistency. Now what is this data inconsistency? It results because of data redundancy. Data inconsistency होती जब ही है जब डेटा रिडंडेंट होगा। व्हेन आई एम कीपिंग डेटा इन डिफरेंट कॉपीज, देर आर चांसेस कि डेटा के साथ टेम्परिंग हो, या गलती से ही कहीं पर कोई चेंज हो जाए, या कहीं पर चेंज करना नेसेसरी हो जाए और वो कम्युनिकेट ना हो बाकी कॉपीज़ में। तो इन दैट केस योर डेटा बिकम्स इनकन्सिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपने अपना फ़ोन नंबर अपडेट करवा रखा है इन योर क्लास टीचर्स रिकॉर्ड, राइट, एंड देन यू गॉट योर फ़ोन नंबर चेंज्ड और आपने कन्वे कर दिया क्लास टीचर को। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर्स के पास भी, बिकॉज दे वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो सब्जेक्ट टीचर्स के पास भी फ़ोन नंबर्स वगैरह के रिकॉर्ड होते हैं। क्लास टीचर को आपने कन्वे कर दिया अपना फ़ोन नंबर, लेकिन वो किसी कारण से, लेट्स सपोज सब्जेक्ट टीचर को कन्वे नहीं हो पाया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम भूल जाते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, आपने नंबर अपडेट करवाया था नहीं करवाया था। ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉट अ बिग डील। तो अब क्या होगा, जब मल्टीपल कॉपीज़ में एक जगह आपका फ़ोन नंबर कुछ और लिखा हुआ है, एक जगह फ़ोन नंबर कुछ और लिखा हुआ है, शायद किसी और के पास कुछ और नंबर हो, तो ऐसा क्या इसमें क्या होता है कि अगर अलग अलग कॉपीज़ में अलग अलग वैल्यूज़ हैं फॉर द सेम डेटा, देन इट इज़ नोन एज डेटा इनकन्सिस्टेंसी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपने एक टेस्ट दिया, आपको सब्जेक्ट टीचर ने मार्क्स दिखा दिए और फिर मार्क्स स्लिप बना के क्लास टीचर को दे दी गई टू मेक द फाइनल रिजल्ट। देन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि कोई एक क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया था, या कोई टोटलिंग मिस्टेक थी, या एनीथिंग लाइक दैट, और वो अपडेट किया गया जब रिकॉर्ड, तो सब्जेक्ट टीचर ने अपने पास मार्क्स अपडेट कर लिए, एंड फॉर सम रीज़न दैट वाज नॉट कन्वेड टू द क्लास टीचर। तो अब ये जो मार्क्स की वैल्यू थी ये इनकन्सिस्टेंट हो गई, क्योंकि जो एक कॉपी क्लास टीचर के पास है, जो एक कॉपी सब्जेक्ट टीचर के पास है, दोनों में वैल्यूज़ अलग अलग हैं, एंड दिस इज़ नोन एज डेटा इनकन्सिस्टेंसी, वेयर डेटा इज़ इन एम्बिग्युअस स्टेट, और जहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल हो कि एक्चुअल करेक्ट डेटा कौन सा है। ऑब्वियसली पता लगाया जा सकता है, बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल क्रिएट अननेसेसरी बर्डन। तो ये एक डिसएडवांटेज थी हमारे फाइल सिस्टम की, जो कि हमारी eliminate हो जाती है in our DBMS, because data redundancy is eliminated. Then yes, it is facilitating sharing of data, and when data is kept at one location, centralized, so we can enforce standards onto it.
इफ इट इज स्कैटर्ड अमंग वेरियस कॉपीज तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट व्हेन इट इज सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्ड्स कैन बी इन्फोर्स्ड इजीली. डेटा इज ऑब्वियसली सिक्योर, जैसे कि मैंने बैंक के एग्जाम्पल में भी आपको बताया. एंड इंटेग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन्ड. इंटेग्रिटी यू कैन से इट इज अपोजिट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी. तो येस, इनकन्सिस्टेंसी अगर कंट्रोल हो जाती है तो डेटा इंटेग्रिटी इज मेंटेन्ड. So these are the advantages what DBMS is providing us, and that is why we need DBMS. Now talking about the models of database. See, जब मैं बात करती हूँ structured information, तो वो structure अलग अलग types के हो सकते हैं, right? और based on that there are various models of DBMS, and the one that we are going to study is a relational database management system. I'm not talking about other models here because that is not in our syllabus and that's not our concern. Therefore, तो relational database में क्या होता है? In RDBMS, your table data is kept in tabular form. एक तो जो मैंने आपको बात करी structure की, कि ये जो models हैं they are decided according to the structure that we are using to store the data. तो RDBMS में जो structure मैं use कर रही हूँ that is a table. और टेबल को हम टेबल ना बोल के रिलेशन बोलते हैं इन RDBMS. क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट डिपिक्ट्स रिलेशन बिटवीन एन एंटिटी एंड इट एट्रीब्यूट्स. एंटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली. कुछ भी ऐसा जिसकी रियल वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसको हम एंटिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कूलिंग सिस्टम की बात करूं तो स्कूल में स्टूडेंट एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है एंड सो इट विल बी नेम्ड एज एंटिटी. एक लॉजिकल यूनिट है मेरी स्टूडेंट एंड सो दैट इज़ माई एंटिटी. एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटिटी की जो डिफाइन करती हैं उसके एग्जिस्टेंस को इन द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्कूलिंग सिस्टम में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको डिफाइन कर रही हैं उस एंटिटी को. सो दे आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, अब ये स्टूडेंट जो है ये मेरी एंटिटी हो गई, और ये जो टेबल आप देख रहे हो दिस टेबल इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन ईच रिकॉर्ड एंड इट्स attributes. So that is why a table is referred as a relation in your RDBMS. Now जो records होते हैं मतलब individual rows, जो एक entity का record होगा, एक entity instance का record होगा, उसको हम बोलते हैं tuple या record या row, कुछ भी आप कह लीजिए. और जो columns हैं उनको हम बोलते हैं field या attributes या columns obviously, as you can see here. Now talking about the basic terminology of RDBMS, some basic terms related to RDBMS. The very first is degree of a relation and cardinality of a relation. Degree क्या होती है? एक टेबल में कितने columns हैं, that is the degree, और कितने number of rows हैं, that is the cardinality. डिग्री ज़ीरो नहीं हो सकती, कार्डिनैलिटी ज़ीरो हो सकती है. अगर टेबल एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ डिग्री ज़रूर होगी, कोई एटलीस्ट एक कॉलम तो एग्जिस्ट करेगा ना, अदरवाइज टेबल कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट द डोमेन, तो एक कोई भी कॉलम के जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसके सेट को हम बोलते हैं डोमेन, या इन जनरल यू कैन से पूल ऑफ वैल्यूज़ फॉर एनी पर्टिकुलर फील्ड. जैसे सपोज हम बात करते हैं रोल नंबर की, तो now let's say that maximum strength in my school for any class cannot exceed 40. तो किसी भी क्लास में जो रोल नंबर की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? 1 से लेके 40 तक कोई भी इंटीजर. इट कैनॉट बी लेस देन 1 एंड इट कैनॉट बी मोर देन 40. अगर मैं 40 पे क्लास स्ट्रेंथ लॉक कर रही हूँ तो ये जो इंटीजर्स हुए फ्रॉम द रेंज 1 to 40, इसको हम बोलेंगे पूल ऑफ वैल्यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलम, दैट इज़ द रोल नंबर, and this is the domain of the column, right? Similarly अगर मैं name की बात करूँ तो name will contain alphabets only. तो any combination of alphabet is the domain of that particular column.
व्यू हम अभी एक एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे व्यू क्या है और क्यों क्रिएट किया जाता है, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, कि जो एडवांटेजेस जो हमने डिस्कस की थी वो कैसे हम अटेन कर रहे हैं इन RDBMS और इन DBMS। तो व्यू को हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी आप ये देख लीजिए, जैसे ये एक मेरी टेबल है स्टूडेंट। You can see here I am having the record of student of various class and their marks in various subjects, right? सपोज ये मेरे स्कूल का रिकॉर्ड है, अभी मैं डमी रिकॉर्ड ले रही हूँ इसलिए मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत कम लिए हैं। अब इसमें सॉरी नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज 5 हैं, सो द कार्डिनलिटी ऑफ माई टेबल इज़ 5, और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें यू कैन सी हेयर आई एम हैविंग रिकॉर्ड ऑफ 5 सब्जेक्ट्स and the other columns are class, roll, name and admission number. तो 5 plus 4 9, total number of columns मेरे पास 9 है, and so the degree of my table is 9. डिग्री विल रिमेन कांस्टेंट, जब तक मैं टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज ना करूं मेरी डिग्री सेम रहेगी। कार्डिनलिटी कैन चेंज, उस आप रिलेट कर सकते हो इस बात को। नाउ टॉकिंग अबाउट व्यूज़, तो अब उसी टेबल को मैं ले लेती हूँ, स्टूडेंट टेबल है मेरे पास। ऑफिस में अगर आप बात करो या प्रिंसिपल के पास या जहाँ पर कंप्लीट डेटाबेस है पूरे स्कूल का, वहाँ पर तो ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन जो क्लास टीचर्स होंगे उनको हर क्लास का डेटा तो नहीं देखना। फॉर एग्जाम्पल 10th क्लास के क्लास टीचर को सिर्फ 10th क्लास का ही रिकॉर्ड देखना है, उसको बाकी क्लास के रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं। या अगर मैं सब्जेक्ट टीचर्स की बात करूं तो हिंदी के टीचर को सिर्फ हिंदी के मार्क्स में इंटरेस्ट है, उसको बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। एंड ऑल्सो सब्जेक्ट टीचर का एडमिशन नंबर से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। तो अब इसी टेबल में से एक तो ये होता है कि मैं इस टेबल के कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स की एक कॉपी जनरेट करके और एक अलग कोई मतलब एक्सेल फाइल क्रिएट कर दी या एक अलग टेबल क्रिएट कर दी, और वो अलग टेबल का जो डेटा है वो मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर को दे दिया। तो यहाँ तो अगेन फिर मेरी रिडंडेंसी आ जाती है। व्यू में क्या होगा, instead of doing this what I will do, I will create a mapping of some selected data from this table. That mapping will be called as view, और वो एक्चुअल में एक टेबल नहीं होगी, वो सिर्फ एक मैपिंग, एक प्रोजेक्शन होगा इसी टेबल के सेलेक्टेड डेटा का अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एंड यूजर। सो अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल एज यू कैन सी हेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट टीचर की बात करूँ तो उसको सिर्फ हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो एक ये मैंने व्यू अलग से क्रिएट कर दिया जिसमें सिर्फ नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिमिलरली इंग्लिश के टीचर को सिर्फ उसी के रिकॉर्ड से कंसर्न है तो उसको उतना ही रिकॉर्ड मिला, एंड सो ऑन टू एवरी सब्जेक्ट टीचर। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ व्यू। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से DBMS में डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस होती है, और क्योंकि अब मेरे पास एक ही कॉपी है तो कोई भी चेंज अगर मैं करूँगी, लेट्स सपोज मैं हिंदी के मार्क्स 75 की बजाय 80 करती हूँ, तो क्योंकि ये जो व्यू है ये इसी डेटा की परछाई है, मैपिंग है, प्रोजेक्शन है, तो जब डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो चेंज रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। सो दिस इज हाउ डेटा इनकन्सिस्टेंसी इज कंट्रोल्ड इन योर DBMS। आई होप इस लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू DBMS। बाकी की डिटेल्स विल डिस्कस इन द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।